हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नोट्स। मैं हूं मंजू मलिक और हम यहां पर डिस्कस करेंगे मैथ्स एग्जाम को। मैथ्स के एमसीक्यूज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंप्लीट पेपर का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इफ यू हैव अ डाउट, you can put your doubts in the comment section. Now we will start our paper discussion. ये सेट 1 से करेंगे हम डिस्कस। सेक्शन ए पार्ट, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। If x is equal to ab cube and y is equal to a cube b and a and b are the prime numbers, then HCF of xy minus LCM of xy is equal to x is equal to ab cube and y is equal to a cube b. In this question, you have to find out firstly HCF of x and y. You know that HCF is the highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में से हमारे पास जो भी हाईएस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो A हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से कॉमन हो जाएगा दोनों में, और B भी दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन। तो A भी क्या आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा। In detailing we discussing later. LCM of XY. If you talk about the LCM, least common multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर तो इंक्लूड होते ही हैं, जो कॉमन नहीं होते वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। a और a रेज टू पावर 3 में यहाँ पे क्या है, a रेज टू पावर 3 और b रेज टू पावर 3 क्या आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा। Now we have to subtract the HCF of x and y minus में LCM of xy. HCF is equal to AB, LCM is equal to a cube, b cube. AB common, 1 minus of a square b square. Then you can apply the identity a square minus b square. 1 minus of AB, 1 plus of AB. Here we got the answer. You will see that option D will be the answer. Option D will be correct. डिस्प्ले पे सेकेंड क्वेश्चन को देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। 1 प्लस में √3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस √3 होल स्क्वायर। You know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. 1 स्क्वायर √3 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 3, 2ab 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 स्क्वायर 3, 2 √3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 √3 विल बी द आंसर। 4 √3 is a irrational number, तो our answer will be positive irrational number. It means answer will be C, positive irrational number. This is a positive irrational number. Question number 3. The value of a for which ax square plus x plus a is equal to 0 has equal and positive roots. You know that equation and quadratic equation have equal and positive roots when discriminant is equal to 0. Discriminant means b square minus 4ac is equal to 0. You can see the question in the display section. Ax square plus bx plus ax square plus x plus a is equal to 0.
b square, it means 1 square minus 4ac. ac is equal to 0. 1 square 1, 4a square is equal to 0. 1 is equal to 4a square. 1 by 4 is equal to a square. It means a is equal to plus minus of 1 by 2. You can see that value of a will be, here value of a is 1 by 2. नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो a will answer will be C. Question number 4. The distance of a point A from x-axis is 3 units. Which of the following cannot be a point of A? It means a point A which is the distance of a point A, maybe the point P or A, whose distance is from x-axis is 3 unit. Point A distance 3 unit from x-axis. It means point having its y coordinate will be 3. In the 3 options, option A, B, C, we got y will be minus 3 and 3. So answer will be D. In D option, we do not get y is equal to 3 or minus 3. In the next question, question number 5, the number of red balls in a bag is 10 more than the number of black balls. Let number of black balls is equal to x, then red balls is equal to 10 plus x. Probability of red ball is equal to 3 by 5. It means total number of balls is equal to 10 plus x plus x. It means 10 plus 2x. Probability of red ball is equal to 10 plus x, favorable cases to red ball 10 plus x. Total probability 10 plus 2x is equal to 3 by 5. You can calculate this by using this. 5 multiply 10, 50 plus 5x is equal to 30 plus 6x is equal to 50 minus 30, 20. 6x minus 5x, x. X is equal to 20. Now we have to see that what will be finding here. The total number of balls in the bag. Total number of balls in the bag is equal to 10 plus 2x. Put the value of x in 10 plus 2x. 2 multiply 20. 20 multiply 2, 40. 40 plus 10, 50. Answer will be 50. Option number A will be correct. Number 6. The value of p for which the equation px plus 3y is equal to p minus 3, comma, second linear equation 12x plus py is equal to p has infinitely many solutions. You know that infinitely solution, two linear equations having infinite many solution, if you have the condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. bx plus 3y is equal to में p minus 3, equation 1. 12x plus py is equal to p, equation number 2. Now comparing the coefficients, a1 by 2, p by 12 is equal to b1 by b2, 3 by p is equal to p minus 3 divided by p, c1 by c2. Now taking first two, you get p square is equal to 36. Now you will get p is equal to plus minus of 6. So your answer will be plus minus of 6. Answer will be C option.
infinite many solution when p is equal to plus minus of 6. Now question number 7, triangle ABC and triangle PQR as shown in the figure. Angle C, measure of angle C. You will see that triangle ABC is equal to root 3 centimeter AC length, length of BC 6 centimeter, length of AB 3.8 centimeter. You will say that PQR triangle, PR की लेंथ है हमारे पास 6√3, PQ लेंथ 12 centimeter, 7.6 centimeter RQ length. You will see that angle R 80 degree, angle Q 60 degree, then angle P will be 40 degree. You will see that AC, length of AC, corresponding sides ratio is same. So the triangles are similar. Triangles are similar, then their corresponding angles are equal. You will see that AC का लेंथ किसके साथ रेशो जाएगा? PR के साथ. तो एंगल C will be equal to angle P is equal to 40 degree. Answer will be D option. In the next question, question number 8, tangent to A is equal to 3 tangent A is true when angle A is equal to 30 degree. You can check the result. Right hand side is equal to left hand side by put the value of angle A 90 degree, 60 degree, 45 degree, 30 degree. You know that 30 degree, add 30, tangent 60 आ जाएगा. tangent 60 कितना रहेगा हमारे पास? √3/1 and 3 tangent A is equal to 3 multiply tangent 30 is equal to 1/√3 रहता है. तो we will get √3. So answer will be option number D, 30 degree. Question number 9, which of the following is true? Sin 20 greater than sin 70. You know that sin function is increasing function. So first is false. Second will be also false. Sin 20 greater than cos 20. Option number C will be correct. Cos 20 greater than cos 70 because cos function is a decreasing function. Cos 20 degree greater रहेगा किससे? Cos 70 degree से, क्योंकि cos क्या है? एक decreasing function है. Cos की values क्या हो जाती हैं? Decrease. Option C will be answer. Question number 10. A rope 30 meter long is tightly stretched and tied from top of the pole to the ground. If the rope makes an angle 60 degree with the ground, height of the pole is 60 degree का एंगल बना रही है. हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ द पोल. पोल इज AB 30 मीटर लॉन्ग, टाइटली स्ट्रेच किया गया, उसको ऐसे स्ट्रेच किया गया, तो AC विल बी 30 मीटर हो जाएगा और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. यू नो दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द H, P/H क्या रहता है हमारे पास? साइन थीटा. परपेंडिकुलर H हो गया हमारे पास और H हाइपोटेन्यूज 30 हो गया. साइन 60 हमारे पास कितना रहता है? √3/2. यहाँ से हमारे पास हो जाएगा √3/2. ये 2 से कैंसिल हो गए 15. H इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 15√3 मीटर. हम डिटेलिंग में बाद में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. अभी के लिए बहुत फास्टली मैं आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 11. On the top face of wooden cube of side 7 centimeter. 7 centimeter उसका साइड है.
हमारे पास वुडन क्यूब का, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस कट किए गए, उसमें से ऐसे डिप्रेशंस निकाल दिए ऐसे करके। डिप्रेशंस जैसे स्कूप निकालते हैं, आइसक्रीम के स्कूप्स निकालते हैं, वैसे ही निकाला गया है। तो ऐसे उसने स्कूप्स निकाल लिए। तो वो कहता है हमारे पास जिसका डिप्रेशन का रेडियस हमें गिवन है 0.5 0.35 सेंटीमीटर, डायमीटर विल बी 0.35 मल्टीप्लाई टू 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या है 0.7 सेंटीमीटर के कितने स्कूप यहाँ निकालने पड़ेंगे कि 7 सेंटीमीटर का कंप्लीट हो जाए? आपको 10 निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। 0.7 को अगर 10 से करते तो 7 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस दैट कैन बी फाउंड, 10 यहाँ से निकलेंगे, 10 यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे? 10 मल्टीप्लाई में 10 कितने हो जाएंगे? 100। योर आंसर विल बी 100। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस कितने हो जाएंगे? 100। बी ऑप्शन 100 will be answer. Question number 12. Cumulative frequency of the calculating median is obtained by adding the frequencies of all classes preceding the median class. Option C will be the answer. You know that 5, 7 of you have given frequencies like this. We taking, if you find out the CF, then we take 4 plus में 5, 9 and so on. तो प्रीसीडिंग क्लास वाली फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा। मीन मीडियन मॉड गिवन है हमें, यहाँ पे मीन गिवन है, मॉड फाइंड आउट करना है। थ्राइस ऑफ मीडियन इक्वल रहता है किसके? ट्वाइस ऑफ मीन प्लस में मॉड के। आप सभी को फॉर्मूला पता, आप वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा 13। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी इज द कोड। 2 सर्कल्स गिवन है जिनका सेंटर सेम है और ए बी एक कोड है। ओ से परपेंडिकुलर डाला गया, परपेंडिकुलर सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस गिवन है। ए बी की लेंथ 2r गिवन है। जो यहाँ से हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है? कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये लेंथ भी r आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ao स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2r स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ao की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2√r। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। Question number 15. A parallelogram having one of its side 5 centimeter circumscribing a circle. इसके अंदर क्या रहता है? सर्कल इसके अंदर है। ये आपके पास एक थ्योरम है, उसमें क्या रहता है कि अगर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस बन जाता है। ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो ठीक है, पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अगर आपको साइड दे रखी थी पैरेललोग्राम की, तो फिर पैरेललोग्राम रोम्बस रहेगा तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो पैरामीटर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 20 आ जाएगा। ऐड कर दो 5 को 4 टाइम्स, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यहाँ से पैरामीटर हमारे पास क्या रह जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, E and F are the points on the side AB and AC respectively triangle ABC such that corresponding sides का रेशियो इक्वल दे रखा आपको। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? AE बाय में AB
AE बाय में EB, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। डिटेलिंग में हम नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर रहेगा। BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF के, क्योंकि यहाँ से फिर BC बाय में EF, अगर BC बाय EF का रेशो मतलब EF बाय में BC का रेशो आएगा हमारे पास 1/2, तो फिर आपका हो जाएगा यहाँ से। उसके नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पॉलिनोमियल P ऑफ X। तो यहाँ से पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास गिवन है 3, तो P ऑफ X हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस हो सकती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि यही रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इट मीन्स टोटल केसेस हमारे पास बनेंगे 36। उसके बाद उसने कहा है कि probability of sum of numbers appearing on the top faces is at most 10। at most 10 का मतलब क्या है, 10 को क्रॉस नहीं करेगा वो। 10 को क्रॉस ना करने का मतलब क्या है कि सम क्या है, 11 और 12 नहीं हो सकता। सम कैन नॉट बी 11 और 12। 11 और 12 के केस हमारे पास बनेंगे 6 6 और 6 5 5 6। तो हमारे पास अगर 3 केस बनते हैं इसके, हमारे पास 3 डिवाइड बाय 36, 1 डिवाइड बाय 12 क्या आ जाएंगे, सम 11 और 12 होने के केस आ जाएंगे। 11 और 12 के केस हमारे पास ये आ गए, और अगर टोटल केस में से हम 11 और 12 का केस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 1/12 कितना आएगा, 11 बाय में 12। तो यहाँ पे हमारे पास 11/12 क्या है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 और 12 सम होने के केस का हमारे पास आ गया 1/12। तो यहाँ पे एट मोस्ट 10 बोला गया था, तो मतलब सम क्या है, 10 तक सम हो सकते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं जिनका 10 सम हो या 10 से कम हो वो सारे केस आ जाएंगे, और वो केस बनेंगे 33/36 भी कह सकते हैं, या फिर 11 और 12 वाले केसेस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11/12 आंसर आ जाएगा डी, 11/12। इसी को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 हो गए, सम कैन नॉट बी 11 और 12। 6 6 6 5 5 6 ये वाले केस हो गए जब सम क्या है 11 और 12 बन सकता है, तो 3/36 हो गए, और सम कैन नॉट बी 1/1 में से माइनस कर देना तो 11/12 आ जाएगा, या फिर वो 36 केसेस बनेंगे 36 डिवाइड बाय 33 डिवाइड बाय 36, वो भी क्या आ जाएगा 11/12 हम हो गया। उसके नेक्स्ट क्या कहता है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन और रीजनिंग है। 4n एंड्स विद 4n एंड्स विद 0 डिजिट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4(1) 4 हो जाएगा, 4(2) हमारे पास 16 हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि x having 2 and 5 इट्स प्राइम फैक्टर्स x⁻n एंड्स विद 0 डिजिट। अगर किसी का भी कोई x नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, या तो 2 and 5 हैं उसके प्राइम फैक्टर, तो वो एंड होगा 0 से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, सेकंड रीजन क्या है, ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 19 का डी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास हो जाएगा
Tangent lines drawn at the end of the diameter of the circle are always parallel to each other. ये तो रहता ही है, parallel रहती है डायमीटर से ऐसे ऐसे, तो ये लाइंस क्या रहती है, टेंजेंट लाइंस पैरेलल रहती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का. तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजनिंग are true, but reason is not correct explanation of A. Option B will be answer. 1 to 20 तक के MCQs हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया. अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.